So, students, after Naive Bayesian classification algorithm, now we are going to learn ID3 algorithm. The other name is decision tree induction. This is a very important algorithm because this is very frequently asked question, and either the theory or a numerical will be going to be definitely asked in the exam. Chances of coming in the exam is very more for this particular algorithm. uh, First we'll understand the theory part, then we'll see the numerical. Okay, so let us understand the theory part. See, what do you mean by decision tree? Decision tree is nothing but, you all know, if then else statement. We have learned if then else statement in C programming, in other programming languages. So graphically, if we represent that if then else statement, then what we are going to get is what? Decision tree. We are going to get decision tree. Once we see the numerical, you'll understand the actual meaning of this particular decision tree. Okay, now next, here in the whole algorithm, what the main aim is to construct a tree, decision tree. We are going to construct a decision tree. I can just show you the example. The example is like this. See, this is the example. This is the decision tree which we are going to make. After the numerical, this is the answer we are going to get. Okay, so here this decision tree, how we are going to construct this decision tree. See, this ID3 algorithm construct decision tree by using top down recursive approach. Means what? From top we'll move towards the down. In this way we are going to construct the decision tree. Next, what advantage we are going to get by this decision tree? See, we are generating the decision tree so that later we can extract the classification rules from the decision tree. We'll see after making the decision tree, we are going to extract classification rules. क्या होता है classification rules? जब ट्री बनाएंगे उसके बाद में देखेंगे हम लोग. ठीक है, इतना भी ध्यान रखो, classification rules हम लोग decision tree में से हम लोग लिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट. अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रेटजी? The basic strategy used by additive algorithm is to first use that splitting attribute which is having the highest information gain. अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है information gain. अब ये सब क्या है information gain, हम लोग इसके फॉर्मूलाज भी देखेंगे. तो यहाँ पर अभी देखो ID3 एल्गोरिथम में जब भी हम लोग ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमारे सामने आएंगे. तो हर एट्रीब्यूट का मुझे इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करना है. सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन जिसका भी रहेगा वो सबसे पहला नोड मेरा बनेगा स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट का. ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा. अभी फॉर द टाइमिंग जस्ट इसका थियरी देख लो. अगर कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म. Okay, next, this will minimize the number of conditions in the decision tree, hence we will obtain simple classification rules. This will speed up the performance of classification. ये जो strategy हम लोग use करेंगे इससे ये सब फायदे हैं. ठीक है, next, information is measured in terms of entropy. एंट्रोपी में इंफॉर्मेशन हम लोग मेजर करने वाले. नेक्स्ट एल्गोरिथम देखते वेरी क्विकली. जस्ट थियरी में इसका एल्गोरिथम का थियरी देखते, फिर न्यूमेरिकल से समझते हैं कि एक्चुअल स्टेप्स हम लोग कैसे ले रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद सिंगल नोड रिप्रेजेंटिंग ऑल द सैंपल्स. पहले एक सिंगल नोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा हमारा यहाँ पर? Step 2 is if all the samples belong to the same class, then the node is converted into a leaf node and labeled with an appropriate class. अगर सारे सैंपल्स एक ही सेम क्लास को बिलोंग करते हैं तो वो नोड को हम लोग लीफ नोड कन्वर्ट कर देंगे और उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे. वो ब्रांच वहीं पर स्टॉप करेंगे एंड लीफ नोड को वहां पर स्टॉप करेंगे. लीफ नोड क्यों? देखो, अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर ट्रीज में तो एंड पॉइंट ब्रांचेस से, रूट से, जब भी स्टेम से, फिर ब्रांचेस से, फिर लीव्स पर आकर के खत्म हो जाता है. लीफ के आगे हम लोग बढ़ते नहीं. तो वही जब भी हम लोग के सारे सैंपल्स अगर सेम क्लास को बिलोंग करेंगे तो दैट नोड को हम लोग लीफ नोड में कन्वर्ट कर देंगे और वहीं पर स्टॉप करेंगे. स्टेप 3, अदरवाइज algorithm make use of an entropy based measure called as an information gain. हम लोग information gain फाइंड आउट करेंगे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का, और सबसे ज्यादा information gain जिस भी एट्रीब्यूट का रहेगा वो हमारा स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट बनेगा या टेस्ट एट्रीब्यूट उसको बोलेंगे हम लोग. ठीक है, तो ऐसे करते हम लोग डिसीजन ट्री को आगे कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे. स्टेप नंबर 4 क्या है? फॉर ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द टेस्ट एट्रीब्यूट अ ब्रांच इज कंस्ट्रक्टेड एंड सैंपल्स आर पार्टीशनड अकॉर्डिंगली. ठीक है,
हर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ टेस्ट एट्रीब्यूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रांच बनाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से एक एट्रीब्यूट हम लोगों को मिला जिसका इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है। अब उस एट्रीब्यूट के 3 वैल्यूज हैं, और वो 3 वैल्यूज है तो 3 ब्रांच उसके बनेंगे, ठीक है। हर ब्रांच में फिर हम लोग आगे जाएंगे और फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर ब्रांच में, और वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे जब तक कि लीफ नोड हमको नहीं मिल जाता, ठीक है। स्टेप नंबर 5, द एल्गोरिथम रिकर्सिवली अप्लाइज इटसेल्फ टू फॉर्म अ डिसीजन ट्री फॉर सैंपल्स एट ईच नोड, ठीक है। अब एल्गोरिथम अपने आप को रिकर्सिवली अप्लाई करता रहेगा जब तक कि मुझे डिसीजन ट्री नहीं मिल जाता सारे सैंपल्स के, ठीक है। एक लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 देख लेते हैं यहाँ पर। स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, दिस रिकर्सिव पार्टीशनिंग विल स्टॉप व्हेन वन ऑफ द बिलो 3 कंडीशंस ट्रू। जब ये 3 कंडीशंस ट्रू रहेंगे तभी हम लोग रिकर्सिव पार्टीशनिंग जो है वो हम लोग स्टॉप करेंगे। कब कब, सबसे पहले जब सारे सैंपल्स एट अ गिवन नोड बिलोंग टू द सेम क्लास। अगर एक पर्टिकुलर नोड है वो सब के सब सेम क्लास को बिलोंग करते, दैट इज अगर हमको लीफ नोड मिल गया तो हम लोग स्टॉप करेंगे। सेकंड कंडीशन, व्हेन वी आर फिनिश्ड विद ऑल द स्प्लिटिंग सैंपल्स, सारे स्प्लिटिंग सैंपल्स भी खत्म हो गए तब हम लोग स्टॉप करेंगे। स्टेप नंबर 3 कंडीशन क्या है, व्हेन वी आर फिनिश्ड विद ऑल द स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स, सारे एट्रीब्यूट्स भी खत्म हो गए तो हम लोग स्टॉप करेंगे। नाउ थर्ड केस में क्या है, इन दिस केस वी मे नॉट गेट अ लीफ नोड एट द एंड। इन सच अ केस concept of majority voting is applied, which involves converting a given node into a leaf node and labeling it with a class having the majority samples, ठीक है। जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि पूरा का पूरा ये एल्गोरिथम हम लोग अप्लाई कैसे कर रहे हैं और हमारा आंसर आ कैसे रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम पार्ट। नाउ नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मूलाज क्या क्या अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, सो दैट हम लोगों को डिसीजन ट्री मिले, ठीक है। अब लेट अस सी द फॉर्मूलाज। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते कैसे, उसमें टर्म्स क्या क्या आते हैं वो टर्म्स को पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन गेन में सबसे पहले टर्म आ रहा है एस, कैपिटल एस वुड स्टैंड फॉर सैंपल्स, ठीक है। जैसे हम लोग प्रीवियस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने देखे नेव बेसियन क्लासिफिकेशन में 14 सैंपल्स वाला एक हम लोगों ने ट्रेनिंग सेट लिए थे, तो उसमें सैंपल्स टोटल कितने थे 14, तो जहां पर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। वही सेम हम लोग को जो ट्रेनिंग सेट है उसी का हम लोग डिसीजन ट्री बनाएंगे, सो दैट आप लोग उस 14 सैंपल से फैमिलियर है, तो वही यहाँ पर डिसीजन ट्री के एल्गोरिथम उसी 14 सैंपल्स को अप्लाई करके उसका डिसीजन ट्री हम लोग बनाएंगे, ठीक है। Now let us understand the next terms. S stands for set of samples. Suppose the class of attribute is having m distinct values. In the same line we will have m different classes. अगर कोई जो क्लास लेवल एट्रीब्यूट है उसकी अगर 2 वैल्यूज है तो 2 क्लास बनेंगे, अगर उसके 3 वैल्यूज है तो 3 क्लास बनेंगे, लाइक दैट, ठीक है। तो एक टर्म आएगा एस आई, लेट एस आई बी द करस्पॉन्डिंग सैंपल्स दैट बिलोंग टू द क्लास सी आई। सी आई यानी जितने क्लास बनेंगे उतने करस्पॉन्डिंग सैंपल्स के लिए एस का टर्म भी बनेगा। अगर लेट से सपोज 2 क्लासेस C1 एंड C2, सो अकॉर्डिंगली S1 एंड S2 दीज आर द 2 सैंपल्स व्हिच वुड बी बिलोंग टू C1 एंड C2। S1 C1 को बिलोंग करेगा, S2 C2 को बिलोंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन गेन मुझे फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला है इंफॉर्मेशन नीडेड बिफोर अ स्प्लिट माइनस इंफॉर्मेशन नीडेड आफ्टर अ स्प्लिट, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ यू सी यहाँ पर देखो आप लोग, गेन इंफॉर्मेशन नीडेड बिफोर अ स्प्लिट माइनस इंफॉर्मेशन नीडेड आफ्टर अ स्प्लिट। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे इंफॉर्मेशन नीडेड बिफोर अ स्प्लिट, इसका फॉर्मूला अलग है, फिर इंफॉर्मेशन नीडेड आफ्टर अ स्प्लिट का फॉर्मूला अलग है। तो इंफॉर्मेशन नीडेड बिफोर अ स्प्लिट वो यहाँ पर है, देखो इंफॉर्मेशन needed to make a correct classification before a split is given by the following formula. ये formula है IFS1, S2, S3 dot dot SM is equal to minus summation of PI log of PI to the base 2 where I is going from 1 to M where PI is SI by S, ठीक है। सारे टर्म्स क्या है डोंट वरी, नहीं समझ रहा है तो हम लोग न्यूमेरिकल में अच्छे से समझेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पर हम लोग थियरी देख रहे हैं और फॉर्मूला क्या है वो देख रहे हैं। लेट कैपिटल A be the splitting attribute having V distinct values। ए कोई स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट से उसकी जितने भी वैल्यूज रहेंगे वो लेट से मैं उसको नाम दे रहा हूँ A1 A2 A3 लेट से AV तक के, ठीक है। दिस कैन बी यूज्ड टू डिवाइड S इनटू V सबसेट्स, तो उसके पर्टिकुलर सैंपल्स भी बन जाएंगे S1 S2 S3 टिल SV तक। नाउ एक और टर्म आ रहा है SIJ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो SIJ। अभी ऊपर हम लोगों ने SI देखा, SI किसको करस्पॉन्ड कर रहा है CI को, यानी C1 C2 है तो S1 S2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो SI आगे एक टर्म आ जा रहा है J। अब ये J क्या चीज है, SI मीन्स व्हाट, क्लास को बिलोंग कर रहा है, यानी S अगर C1 C2 है तो S1J और S2J बनेगा। अब ये J क्या है,
let Sij be the number of samples of class Ci in Sj, where Sj contains those samples that have a value Aj, यानी attributes के जितने values रहेंगे उतना J आएगा. लेट्स एक एट्रीब्यूट मुझे मिला है, उसके 3 पर्टिकुलर वैल्यूज, तो J पहले 1, फिर J2, देन J3 अकॉर्डिंगली. तो S अगर सपोज क्लास C1 के लिए J1 है, तो पर्टिकुलर वैल्यूज भी उसके अकॉर्डिंगली Sij का टर्म वैसे बनेगा. डोंट वरी, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो न्यूमेरिकल्स में मैं अच्छे से समझाऊंगा ये Sij बनता कैसे. ठीक है, ये हो गया हमारा Sij. नेक्स्ट इज information needed to make a correct classification after a split is given by the following formula. ये फॉर्मूला है information needed after a split का. क्या फॉर्मूला है, रीड आउट करते हैं यहाँ पर. E of A is equal to summation of S1j plus S2j plus S3j till Smj divided by S into I of S1j, S2j, S3j till Smj. ठीक है, ये पूरा समेशन का एक टर्म बनेगा, वेयर दिस पर्टिकुलर आई का जो टर्म है वो एक्चुअली है क्या, इट इज माइनस समेशन ऑफ पी आई जे लॉग ऑफ पी आई जे टू द बेस टू वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to m, वेयर दिस पी आई जे इज नथिंग बट एस आई जे बाय एस जे. ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन नीडेड आफ्टर अ स्प्लिट, और ये ऊपर हमने देखा इन्फॉर्मेशन नीडेड बिफोर अ स्प्लिट. अब ये दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे, देन वी विल गेट व्हाट, विल गेट दिस पर्टिकुलर thing, will get information gain of any attribute is nothing but information needed before a split minus information needed after a split. तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर हम लोगों ने देखा, ये पर्टिकुलर आई ऑफ S1 S2 दिस माइनस ई ऑफ ए, इन्फॉर्मेशन नीडेड आफ्टर स्प्लिट. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला ये हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में. ठीक है, सो दिस वाज द थियरी ऑफ दिस डिसीजन ट्री. अब हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझेंगे कि हाउ दिस इज we can apply this particular algorithm to a ट्रेनिंग सेट. नाउ वही सेम हम लोग ट्रेनिंग सेट लेते हैं जो ट्रेनिंग सेट हम लोगों ने डिसीजन ट्री के लिए लिया था. सो सॉरी, नेव बेजियन के लिए लिया था. नेव बेजियन के लिए जो आपको याद होगा, ये वाला ट्रेनिंग सेट, सेम वही ट्रेनिंग सेट है. यहाँ पर 14 सैंपल्स है और एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 4 एट्रीब्यूट्स है, एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग, और क्लास लेवल एट्रीब्यूट क्या है, बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर. ठीक है, अब यहाँ पर एज की कितने वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है. एज या तो लेस देन इक्वल 30 है, या तो 31 to 40, या तो ग्रेटर देन 40. इनकम 3 टाइप्स, हाई, मीडियम एंड लो. स्टूडेंट 2 टाइप्स, यस और नो. क्रेडिट रेटिंग 2 टाइप्स, फेयर और एक्सेलेंट. बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर 2 वैल्यूज, यस और नो. ठीक है, इसके लिए अभी मैं क्या करूंगा, डिसीजन ट्री बनाऊंगा. तो क्वेश्चन is what? Question is like this. Refer to the training set with 14 samples. Construct a decision tree by using ID3 algorithm. Hence develop a classification model. हमको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक ट्रेनिंग सेट आपको दिया गया है जो अभी मैंने आपको बताया. अब ये विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री बाय यूजिंग ID3 algorithm, एंड इसके बाद क्लासिफिकेशन मॉडल डेवलप करो. कैसे डेवलप करेंगे, पूरा डिसीजन ट्री बनने के बाद मैं बताऊंगा. बहुत सिंपल, बहुत आसान है क्लासिफिकेशन मॉडल. एक बार ट्री हमारे पास मिल गया, बस उसको देख करके सेंटेंसेस लिखना है तो बन जाता है क्लासिफिकेशन मॉडल. ठीक है, नेक्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. वेरी सिंपल, जैसे कि आप देखो ट्रेनिंग सेट में क्लास लेवल एट्रीब्यूट क्या है हमारा, बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर. इसके वैल्यूज कितने, 2 वैल्यूज, यस और नो. 2 वैल्यूज है तो 2 क्लास बनेंगे. तो वेरी क्विकली आई विल जस्ट राइट डाउन हियर द क्लास लेवल एट्रीब्यूट इज हैविंग 2 वैल्यूज, देयरफॉर 2 क्लासेस C1 C2. C1 वो क्लास जिसमें बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस है, C2 वो क्लास जिसमें बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर नो है. तो जैसे मैंने बताया था C1 C2 है तो S का टर्म आ जाएगा SI, यानी तो C1 के लिए S1, C2 के लिए S2. S1 और S2, अब S1 काउंट करो कितने हैं, S2 काउंट करो कितने. S1 मतलब C1 मतलब बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर यस, काउंट करो कितने हैं, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 आ गया. S2 मतलब C2 को बिलोंग करता है, यानी बाय अंडरस्कोर कंप्यूटर नो, काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया. ठीक है, अभी करना क्या है, ये जो 4 एट्रीब्यूट्स है, एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग, चारों का अभी क्या फाइंड आउट करो, इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करो. सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन जिसका रहेगा वो हमारा बनेगा सबसे ऊपर वाले डिसीजन ट्री का नोड. गेटिंग इट. तो अभी हम लोग बढ़ेंगे, एज का इन्फॉर्मेशन गेन निकालूंगा, फिर इनकम का, फिर स्टूडेंट का, फिर क्रेडिट रेटिंग का. लेट से पहले मैं एज का निकालता हूँ. तो फॉर्मूला क्या है इन्फॉर्मेशन गेन का, information needed before a split minus information needed after a split. जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, gain of any attribute is nothing but information needed before a split minus information needed after a split. तो ये 2 पर्टिकुलर हम लोग
एज के लिए फाइंड आउट करेंगे। आई S1 S2 S3 till SM माइनस ई ऑफ एज। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। इन्फॉर्मेशन नीडेड बिफोर अ split is given by the following formula. I of S1 comma S2 comma S3 till SM is nothing but minus summation of pi log of pi to the base 2। तो यहाँ पर देखो दो ही S1 S2 तो S1 S2 ही आएगा। यहाँ पर समेशन I is going from 1 to M। M यहाँ पर देखो दो वैल्यूज है क्लासिकल वेक्टर बिट के, यस और नो, इसीलिए I का वैल्यू भी दो आएगा। एक तो आएगा P1 log of P1, दूसरा आएगा P2 log of P2। ठीक है, P1 क्या है? P1 इज नथिंग बट S1 by S, P2 इज नथिंग बट S2 by S। S1 S2 और टोटल कैपिटल एस का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा मुझे बताओ। टोटल कैपिटल एस का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 14 सैंपल्स, तो वैल्यू इज 14 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, विल गेट द आंसर। आई ऑफ 9,5 इज नथिंग बट 0.940। ये मुझे मिल गया इन्फॉर्मेशन नीडेड बिफोर स्प्लिट। अब मुझे फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन नीडेड आफ्टर स्प्लिट। उसका फॉर्मूला फटाफट मैं लिख दूंगा यहाँ पर, पूरा फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुके हैं। अब ये फॉर्मूले के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल रिक्वायर इज SIJ का टर्म। यहाँ पर देखो S1J S2J S3J ये सारी चीजें, ये सब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एज के लिए भी हम लोग एज के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एज के लिए देखो यहाँ पर जे एज के कितने पर्टिकुलर वैल्यूज हैं? यहाँ पर देखो एज के 3 वैल्यू हैं। एक है लेस देन इक्वल टू 30, एक है 31 to 40, दूसरा ग्रेटर देन 40। तो यानी एज का जो जे का वैल्यू है ना, स्मॉल जे, वो 3 हो जाएगा। जे इज इक्वल टू 1 एज लेस देन 30, जे इज इक्वल टू 2 एज 31 to 40, जे इज इक्वल टू 3 एज ग्रेटर देन 40। समझ में? और SI मीन्स व्हाट? SI is nothing but S1 and S2। S1 and S2। S1 यानी बाय इंडस कंप्यूटर यस, S2 यानी बाय इंडस कंप्यूटर नो। यानी S1 C1 को बिलोंग करता है, S2 C2 को बिलोंग करता है। अब इसके साथ में ये J टर्म ऐड हो जा रहा है। J मीन्स व्हाट? ये कंडीशन ऐड कर दो। एक तो S1, S1 मतलब बाय इंडस कंप्यूटर यस। उसके साथ में अगर मैं ये J का 1 ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? एज लेस देन इक्वल टू 30। यानी बाइनरी कंप्यूटर यस के साथ साथ एज लेस देन और इक्वल टू 30 भी आ जाएगा। वो देखो कितना है S11। अगर मैं देख रहा हूँ एज लेस देन इक्वल टू 30 और बाई इंडस्ट्री कंप्यूटर यस, ऐसे कितने वैल्यूज हैं? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ यहाँ पर है एज लेस देन 30 और यस। फिर उसके बाद में देखो और कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है 2 हो गए, दैट्स इट, ओनली 2। तो यहाँ पर S11 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। गेटिंग इट? सिमिलरली यहाँ पर मैंने वही लिखा हूँ, S11 का वैल्यू क्या है? 2। सिमिलरली ये S21 कैसे बना? S2 मतलब बाइनरी कंप्यूटर नो, उसके साथ में ये J1 अटैच कर दो। ठीक है, तो बाइनरी कंप्यूटर नो और साथ ही साथ में एज लेस देन 30, ऐसे कितने नो पर्टिकुलर आपको मैचिंग मिल रही है, वो वैल्यूज यहाँ पर मुझे लिखना है। S21 2 मीन्स व्हाट? बाइनरी कंप्यूटर नो, साथ साथ में 1 एज लेस देन इक्वल टू 30। जस्ट चेक इट आउट। नो के लिए लेस देन इक्वल टू 30 है क्या? यहाँ पर लेस देन 30 और नो, यस 1 मिल गया, 2 मिल गया, देन आफ्टर दैट लेस देन इक्वल टू 30 में यहाँ पर 3 मिल गया, 3, देन यहाँ ये नहीं है, देन आफ्टर दैट ये भी नहीं है, 3, ओनली 3। सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू 3। गेटिंग इट? कैसे आया समझ में आया? सिमिलरली एज 31 to 40 के लिए J2, एज ग्रेटर देन 40 के लिए J3। तो यहाँ पर अभी लिखना कैसे हम लोगों को? S1 और S2 ये पहले लिख देने का, और फिर ये J2 है अटैच कर देना इसको 2 2। सिमिलरली यहाँ पर भी एज ग्रेटर देन 40 के लिए J3 है, पहले S1 और S2 आप लिख दो, उसके बाद में ये 3 अटैच कर दो, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। सिमिलरली S12 क्या बोलता है? S पहला वाला 1 जो है बाय इंडस कंप्यूटर यस, और यहाँ पर पहला वाला 2 क्या है? बाय इंडस कंप्यूटर नो। ये भी बाइनरी कंप्यूटर यस, ये है बाइनरी कंप्यूटर नो। और बाद वाली जो वैल्यूज है ये 2 2, ये 3 ये 3, ये क्या है? ये J के वैल्यूज है, और ये आपको बताते हैं एज 31 to 40 और एज ग्रेटर देन 40। तो ये क्या है? इसका मतलब क्या? S12 मीन्स व्हाट? एज बाय इंडस्ट्रियल कंप्यूटर शुड बी यस एज वेल एज एज शुड बी 31 to 40। ऐसे चेक करो कितने वैल्यूज हैं। एज बाइनरी कंप्यूटर yes and age 31 to 40, check it out। 31 to 40 के लिए yes 1, then after that this is 2, then after that this is 3, this is 4, तो we are getting 4, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 4। सिमिलरली चेक इट आउट, बाइनरी कंप्यूटर नो और साथ साथ में 31 to 40 भी चाहिए। तो ऐसे कितने वैल्यूज है? 31 to 40 के लिए नो है क्या? नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, दैट मीन्स एक भी वैल्यू नहीं, तो सीधा सीधा जीरो, सीधा सीधा जीरो।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर S133 आएगा, S232 आएगा। अब करना क्या, मुझे इन्फॉर्मेशन नीडेड आफ्टर स्प्लिट के लिए आई का टर्म मुझे चाहिए रहेगा। यहाँ पर आई S11, S21 ये कैलकुलेट करो। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, I2, 3 पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला देखे हैं, वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो विल गेट 0.971। सिमिलरली यहाँ पर भी आई ऑफ S12, S22 आपको निकालना है। यहाँ पर भी ध्यान देंगे, अगर आई के टर्म में ये दोनों में से अगर एक भी टर्म जीरो अगर आता है, whole answer becomes zero। यहाँ पर मैंने लिखा in I calculation if any of the term is zero then the whole answer will be zero। तो डायरेक्टली अगर दोनों में से एक भी टर्म जीरो है तो सीधा आंसर आप जीरो लिख दो, नो नीड फॉर कैलकुलेशन। ओके, नाउ आफ्टर दैट एज ग्रेटर देन 40 के लिए आई का टर्म हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर गेटिंग 0.97। अब ये सब मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर दिस पर्टिकुलर ई ऑफ एज में। ई ऑफ एज का जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, अगर आप देखोगे समेशन ऑफ S1j plus S2j plus S3j till SMj divided by S into I of S1j, S2j till SMj where j is going from 1 to v। ये v क्या है, v ये जो एज एट्रीब्यूट्स है इसके कितने वैल्यूज है, तीन वैल्यू है। तीन कितने वैल्यूज है, तीन वैल्यूज है। वो तीन यानी तीन टर्म यहाँ पर आएंगे। वो तीन टर्म कहाँ जाएंगे, जे जहां जहां पर है पहले 1 आएगा, फिर सेकेंड टर्म में J2 डालेंगे, फिर थर्ड टर्म में J3 डालेंगे। तो फर्स्ट टर्म डालो S11 प्लस S22, सॉरी J पहले 1 तो S11 प्लस S21, ठीक है, डिवाइड बाय S इंटू आई ऑफ, यहाँ पर J जहां पर भी यहाँ पर J को 1 डालो, S11, S21, यहाँ पर देखो S11, S21, दैट्स इट। ये S31 क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज S जो है दो ही क्लास बन रहे हैं, इसीलिए SI जो है वो दो ही, S1 और S2, इसीलिए दो ही टर्म आएंगे, S1 और S2। S3 की तरफ हम लोग जाएंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी थर्ड टर्म नहीं आएगा। सिमिलरली सेकेंड, अभी J का वैल्यू 2 आप पुट अप करो और ये पर्टिकुलर ब्रैकेट मिलेगा, फिर J का वैल्यू 3 पुट अप करो, फिर आपको ये ब्रैकेट मिलेगा, फिर ऊपर जो हम लोगों ने वैल्यूज निकाले वो सब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ई ऑफ एज मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर गेटिंग इट, ई ऑफ एज मुझे मिलेगा 0.694। तो अभी ई ऑफ एज मिल गया, दैट मीन्स व्हाट, इन्फॉर्मेशन नीडेड आफ्टर स्प्लिट मिल गया। अब इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा है, इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ एनी एट्रीब्यूट इज नथिंग बट इन्फॉर्मेशन नीडेड बिफोर अ स्प्लिट माइनस इन्फॉर्मेशन नीडेड आफ्टर अ स्प्लिट। सो अप्लाई करेंगे हम लोग ई ऑफ गेन ऑफ एज इज नथिंग बट इन्फॉर्मेशन नीडेड बिफोर स्प्लिट माइनस इन्फॉर्मेशन नीडेड आफ्टर स्प्लिट। तो वो जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आई ऑफ S1, S2 माइनस ई ऑफ एज 0.940, पीछे हम लोग को मिला है माइनस 0.694, तो मुझे मिला 0.246। ये 0.246 का मिला गेन ऑफ एज ना। अभी ये एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का मुझे गेन मिला है, किसका, एज का मिला है। सेम स्टोरी अभी मैं रिपीट करूंगा इनकम के लिए, इसका इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करूंगा। सेम स्टोरी मैं रिपीट करूंगा स्टूडेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करूंगा स्टूडेंट का। सेम स्टोरी रिपीट करूंगा क्रेडिट रेटिंग के लिए, फिर इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करूंगा। और फिर ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है, लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हूँ बट आपको यहाँ पर सॉल्व कैलकुलेट करना है जैसे हम लोगों ने एज के लिए किया, और फिर आपको आंसर जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा आंसर, ठीक है। मुझे आंसर, ठीक है, गेन ऑफ एज मुझे मिला है यहाँ पर 0.246। Similarly, we will find the following gain using same approach। gain of student मुझे मिलेगा 0.151, gain of crediting मुझे मिलेगा 0.046, gain of income मुझे मिलेगा 0.029, ठीक है। आफ्टर दैट अब ये चारों को कंपेयर करो और सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन किसका है, किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, गेन ऑफ एज का सबसे ज्यादा 0.246। इसीलिए आउट ऑफ दिस 4 एट्रीब्यूट्स गेन ऑफ एज इज हाईएस्ट, देयरफॉर एज विल बिकम द स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। तो इसीलिए मैं सबसे पहले मेरा डिसीजन ट्री बनाऊंगा, एज यहाँ पर मैं लिखूंगा, और एज के कितने वैल्यूज है, तीन वैल्यूज है, या तो एज लेस देन 30, 31 to 40 और ग्रेटर देन 40, तीन ब्रांच बनेंगे इसके। और फिर लेफ्ट ब्रांच में एज लेस देन 30, ऐसे कितने सैंपल्स, जस्ट चेक इट आउट, 1 2 3 4 5, 5 है, यहाँ पर ब्रैकेट में डालूंगा 5 सैंपल्स। सिमिलरली यहाँ पर जितने सैंपल्स उतने लिखूंगा, यहाँ पर जितने सैंपल्स उतने लिखूंगा। एज ग्रेटर देन 40 के लिए काउंट करो कितने हैं, एज ग्रेटर देन 40 के लिए 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 सैंपल्स। अब अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर मैंने येस क्यों लिखा हूँ, येस ना, इफ यू सी एज 31 to 40 के लिए जब भी मैं देख रहा हूँ 31 to 40 के लिए बाय एंड कंप्यूटर येस आ रहा है, यहाँ पर भी 31 to 40 तो येस, यहाँ पर भी 31 to 40 तो येस, 31 to 40 येस, यानी जब भी एज 31 to 40 है तो उसका वैल्यू जो है बाय एंड कंप्यूटर का येस ही आ रहा है। दैट मीन्स वो एक लीफ नोड बन गया, तो यहीं पर येस आप बना दो और उसको स्टॉप करो, इसके आगे मुझे बढ़ना नहीं।
बट लेकिन जब यहाँ पर एज लेस देन 30 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर 5 सैंपल्स मुझे मिल रहे हैं, तो लेस देन 30 के लिए नो भी आ रहा है और फिर लेस देन 30 के लिए यस भी आ रहा है, ठीक है, नो भी आ रहा है, यस भी आ रहा है, तो ये लीफ नोड नहीं बना, तो इसको अब मुझे आगे एक्सटेंड करना, तो इसलिए यहाँ पर 5 सैंपल्स बना करके मैं छोड़ दूंगा। सिमिलरली सेम स्टोरी एज ग्रेटर देन 40 के लिए भी, यहाँ पर भी हम लोगों को सेम कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर 5 सैंपल्स। अब यहाँ तक के अभी मुझे मिला मेरा डिसीजन ट्री, यहाँ तक के मुझे ये इनकम्प्लीट है, अभी इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। अब लेफ्ट ब्रांच के ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, फिर इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर हम लोग राइट ब्रांच की तरफ जाएंगे। अब लेफ्ट ब्रांच में टोटल अभी कैपिटल एस क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो उसके लिए जो छोटा टेबल अभी बनेगा, जो पहले 14 सैंपल्स का टेबल बना था यहाँ पर, अब यहाँ पर सिर्फ 5 सैंपल्स का टेबल बनेगा, दैट यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पर देखो 5 सैंपल्स का ये टेबल बन गया है, जहां पर सिर्फ एज लेस देन 30 के लिए ये पर्टिकुलर टेबल बनाए। ये जो बड़ा टेबल है इसमें से सिर्फ आप एज लेस देन 30 वाले वैल्यूज निकाल करके ये टेबल बना दो, ठीक है। 5 सैंपल्स का बनेगा, यहाँ पर कैपिटल एस टोटल कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। सेम स्टोरी रिपीट करेंगे, इनकम का इन्फॉर्मेशन गेन निकालेंगे, स्टूडेंट का निकालेंगे, क्रेडिट रेटिंग का निकालेंगे, तीनों में से सबसे ज्यादा जिसका गेन रहेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट आएगा। स्टूडेंट G1, इनकम का G2, क्रेडिट रेटिंग का G3, ये तीनों का इन्फॉर्मेशन गेन का सबसे ज्यादा जिसका आएगा वो यहाँ पर वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट बनेगा, और वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड के लिए भी, राइट ब्रांच के लिए भी वही स्टोरी रिपीट करेंगे। अब अगर आप देखोगे तो ये तो कितना बड़ा प्रोसेस है, बहुत टाइम लग रहा है इसके लिए। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन से हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर एक सिंपल सा अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूंगा, तो यहाँ पर मुझे कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, देखो स्टूडेंट जब भी नो है तो बायोनोस कंप्यूटर भी नो है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट नो तो बायोनोस कंप्यूटर नो, स्टूडेंट नो तो बायोनोस कंप्यूटर नो, स्टूडेंट नो तो बायोनोस कंप्यूटर नो, स्टूडेंट यस तो बायोनोस कंप्यूटर यस, स्टूडेंट यस तो बायोनोस कंप्यूटर यस। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से मुझे ये पता चला कि स्टूडेंट जो है यहाँ पर ये लीफ नोड बन सकता है। तो इसके लिए जब मैं फाइंड आउट करूंगा इंफॉर्मेशन गेन सिर्फ स्टूडेंट का, तो कैपिटल एस यहाँ पर 5 है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 5 है। S1 यानी बायोनोस कंप्यूटर यस वाले S1 2 है, बायोनोस कंप्यूटर नो यानी S2 3 है यहाँ पर। तो गेन अगर मैं निकालने जाऊंगा स्टूडेंट का, तो उसका फॉर्मूला क्या है, इन्फॉर्मेशन रेट बिफोर स्प्लिट माइनस इन्फॉर्मेशन रेट आफ्टर स्प्लिट, दैट मींस आई ऑफ S1 S2 S3, जो फॉर्मूला माइनस ई ऑफ है वही फॉर्मूला मैंने रिपीट किया। तो यहाँ पर अगर मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा तो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर नजर आएगी। स्टूडेंट के लिए मैं इन्फॉर्मेशन गेन निकालूंगा, सारे फॉर्मूलाज में अप्लाई करूंगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रेट बिफोर स्प्लिट जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मुझे 0.971 मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन रेट आफ्टर स्प्लिट स्टूडेंट के लिए जब फाइंड आउट कर रहा हूँ, स्टूडेंट के कितने वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट के कितने वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है, यस और नो। तो जे कितना आएगा, 2 ही आएगा, जे या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। J1 आप ले लो स्टूडेंट यस के लिए, J2 ले लो स्टूडेंट नो के लिए। तो पहले आएगा S1 S2 बायोनोस कंप्यूटर यस, बायोनोस कंप्यूटर नो, इसके साथ में J1 अटैच कर दो 1 1। तो ये क्या बन जाएगा, बायोनोस कंप्यूटर यस और स्टूडेंट यस। ऐसे कितने काउंट करो, बायोनोस कंप्यूटर यस और स्टूडेंट यस। तो आप यहां से नहीं देखो, यहां से देखो, बायोनोस कंप्यूटर यस और स्टूडेंट यस, बायोनोस कंप्यूटर यस और स्टूडेंट यस। यहाँ पर देखो 1 एंड देन 2, तो 2 वैल्यूज है, यहाँ पर मैं पुटअप करूंगा 2। अब ये सेकंड वाला कैलकुलेट करो, बाय एंड कंप्यूटर नो और बाद में J1 मीन्स व्हाट, स्टूडेंट यस। बाय एंड कंप्यूटर नो चाहिए और स्टूडेंट चाहिए यस। देखो बाय एंड कंप्यूटर नो के लिए यस आ ही नहीं रहा है, स्टूडेंट यस नो के लिए आ ही नहीं रहा, नो के लिए आ ही नहीं, दैट मीन्स व्हाट, वैल्यू इज 0। तो इधर आ जाएगा 0 वैल्यू। अगर दोनों में से एक भी टर्म 0 हो जाता है तो आई का जो टर्म है वो 0 मिलेगा मुझे, ये हम लोगों ने देख चुके हैं। सिमिलरली स्टूडेंट नो के लिए आप कैलकुलेट करो S1 S2, पहले S1 S2 लिखना, बायोनोस कंप्यूटर यस और बायोनोस कंप्यूटर नो, उसके साथ में ये J2 अटैच कर दो, ये 2 ये 2। तो सिमिलरली जब मैं कैलकुलेट करूंगा, फाइंड आउट करूंगा, आई विल गेट दिस टर्म एज 0, दिस टर्म एज 3। सो बिकॉज ऑफ दिस आई ऑफ S1 2 S2 2 बिकम 0। तो जब भी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ई ऑफ स्टूडेंट का, तो मुझे मिल जाएगा 0, बिकॉज ऑफ दिस आई टर्म 0। तो वो जो बड़ा जो फॉर्मूला है, बड़े फॉर्मूला में अगर हम लोगों ने देख चुके हैं, इन द बिग फॉर्मूला दिस ई ऑफ ए इज नथिंग बट इनटू हो जाता है आई के टर्म से। अगर आई का टर्म यहाँ पर 0 आ जाता है तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो दैट मीन्स व्हाट, ई ऑफ ए जो है यहाँ पर, ई ऑफ स्टूडेंट जो है मुझे 0 मिलेगा। ई ऑफ स्टूडेंट अगर 0 मिलेगा तो इन्फॉर्मेशन गेन अगर स्टूडेंट का मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो
इंफॉर्मेशन गेन ऑफ स्टूडेंट, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा IF S1 S2 S3 टिल SM माइनस E ऑफ A, दैट मीन्स ऑफ 0.971, ये ऊपर मैंने निकाला इन्फॉर्मेशन नीड बिफोर स्लिप माइनस E ऑफ स्टूडेंट मुझे मिला 0, E ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर मुझे मिला 0। अगर यहाँ पर कोई टर्म 0 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जो पर्टिकुलर गेन है उस एट्रीब्यूट का सबसे ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज 0 के बाद में अगर कुछ कोई भी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर पुट अप करूंगा तो वो 0.971 से माइनस होकर के कोई ना कोई वैल्यूज इससे कम ही आएगी। लेकिन अगर स्टूडेंट का 0 आ गया दैट मीन्स वो स्टूडेंट का गेन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आती है तो वो गेन स्टूडेंट से कम ही होगा। ठीक है, एज ऑफ स्टूडेंट इज 0 देयरफॉर गेन ऑफ स्टूडेंट विल बी हाईएस्ट, देयरफॉर गेन ऑफ स्टूडेंट जो है मेरे को मिलता है 0.971। इसीलिए हियर फॉर द लेफ्ट ब्रांच स्टूडेंट बिकम्स द स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट। तो लेफ्ट ब्रांच में अभी स्टूडेंट जो है मुझे क्या मिला, स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट मिला, बिकॉज उसका इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है। वो कैसे पता चला मुझे? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग में मुझे सिमिलैरिटी दिखी, मैंने सिर्फ स्टूडेंट का कैलकुलेट किया और मुझे उसका ई ऑफ स्टूडेंट 0 मिला, तो उससे मैंने ये कंक्लूड किया कि इसका ही गेन सबसे ज्यादा होगा। सो नो नीड फॉर कैलकुलेटिंग द गेन ऑफ इनकम क्रेडिट रेटिंग, सीधा सीधा स्टूडेंट का आप क्लेम करोगे इसका सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट ब्रांच का मुझे मिल गया तो उसका मैं डिसीजन ट्री अब क्या करूंगा, ऐड करूंगा। डिसीजन ट्री में उसको ऐड करूंगा। जब मैं डिसीजन ट्री में उसको ऐड करूंगा तो मेरा डिसीजन ट्री अभी कुछ इस तरह से दिखेगा। पिछला जो डिसीजन ट्री है उसमें जस्ट ये लेफ्ट ब्रांच में अपडेट हो जाएगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट अगर यस है तो बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर यस आ रहा है, स्टूडेंट अगर नो है तो बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर नो आ रहा है। तो ये लीफ नोड बन गया, यहीं पर स्टॉप, अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। सिमिलरली सेम स्टोरी अब मैं रिपीट करूंगा राइट ब्रांच के लिए। राइट ब्रांच के लिए क्या है, एज ग्रेटर देन 40 के लिए 5 सैंपल्स, पूरे पर्टिकुलर वो टेबल 14 सैंपल्स में से आप सिर्फ राइट ब्रांच यानी एज ग्रेटर देन 40 के जो जो वैल्यूज है वो आप उससे छोटा टेबल बना लो। कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज लो और ये पर्टिकुलर टेबल बनाओ। ये टेबल बनाने के लिए सेम जो हम लोग लेफ्ट ब्रांच के लिए किया सेम हम लोग राइट ब्रांच के लिए करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं अगेन मुझे तीनों का इन्फॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करना है, सबसे ज्यादा जिसका रहेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, एट्रीब्यूट बनेगा, ब्रांच बनेगा। तो यहाँ पर भी जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो यहाँ पर अभी कौन सा एट्रीब्यूट सेम पर्टिकुलर स्टोरी रिपीट कर रहा है, वो है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का अगर मैं ध्यान से देखूंगा जब भी क्रेडिट रेटिंग का वैल्यू फेयर है बाय इंडस कंप्यूटर यस आ रहा है, फेयर है तो यस आ रहा है, एक्सेलेंट है तो नो आ रहा है, फेयर है तो यस आ रहा है, एक्सेलेंट है तो नो आ रहा है। ऐसा और कोई दूसरा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ये पर्टिकुलर थिंग सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी फेयर है तो बाइनरी कंप्यूटर यस है, एक्सेलेंट है तो नो है, फेयर है तो यस है, एक्सेलेंट है तो नो। तो सिमिलरली सेम स्टोरी में रिपीट करके मुझे पता चलेगा कि राइट ब्रांच में ये कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पर बन जाएगा, स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट, क्रेडिट रेटिंग। तो फिर मेरा फाइनल जो डिसीजन ट्री है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो फाइनल डिसीजन ट्री विल लुक लाइक दिस, एज लेस देन 30, 31 to 40, ग्रेटर देन 40। लेस देन 40 में स्टूडेंट में मुझे मिला लेफ्ट ब्रांच में, अगर स्टूडेंट यस है तो बायोटिक्स कंप्यूटर यस, अगर स्टूडेंट नो तो बायोटिक्स कंप्यूटर नो। सिमिलरली एज 31 to 40 है तो बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर यस ही है उसके लिए। सिमिलरली अगर एज ग्रेटर देन 40 है तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, क्रेडिट रेटिंग मिला। क्रेडिट रेटिंग अगर फेयर है तो बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर यस, क्रेडिट रेटिंग अगर एक्सेलेंट है तो बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर नो। सो दिस इज द फाइनल डिसीजन ट्री, ये आपको फाइनल आंसर लिखना है, दिस वुड गेट यू द फुल मार्क्स। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में लास्ट में आपको ये भी पूछा गया था कि हेंस डेवलप द क्लासिफिकेशन मॉडल, हेंस डेवलप अ क्लासिफिकेशन मॉडल। तो क्लासिफिकेशन मॉडल बहुत सिंपल है, एक बार आपके पास में डिसीजन ट्री आ गया तो उससे आप क्लासिफिकेशन मॉडल वेरी इजीली जस्ट स्टेटमेंट्स लिखने हैं। तो क्या स्टेटमेंट्स लिखना है, यहाँ पर देखो कितने लीफ नोड मिल गए हमको, यहाँ पर जस्ट काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 लीफ नोड 5 स्टेटमेंट्स, दैट्स इट। पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा, देखो क्लासिफिकेशन मॉडल में if age is less than equal to 30 and student is equal to yes then by industry computer is equal to yes। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन मॉडल का क्या बनता है, क्लासिफिकेशन मॉडल फर्स्ट स्टेटमेंट इफ एज इज लेस देन 30 एंड स्टूडेंट इज इक्वल टू यस देन बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर इज इक्वल टू यस। सेकंड स्टेटमेंट आप खुद ही बताओ मुझे, देखो क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, इफ एज इज लेस देन 30 एंड स्टूडेंट इज नो देन बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर शुड बी नो। तो सेम वही स्टेटमेंट यहाँ पर डिसीजन ट्री को देखने का और स्टेटमेंट बनाते जाने का। इफ एज इज लेस देन 30 एंड स्टूडेंट इज इक्वल टू नो देन बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर इज इक्वल टू नो। सिमिलरली थर्ड स्टेटमेंट देखो, इफ एज इज 31 to 40 देन बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर इज यस। तो थर्ड स्टेटमेंट बना मेरा ये, इफ एज इज 31 to 40 देन बाय इंडस्ट्री कंप्यूटर इज यस। सिमिलरली
If age is greater than 40 and credit rating is equal to fair, then binary computer is equal to yes. Similarly, if age is greater than 40 and credit rating is equal to excellent, then binary computer should be no. So binary computer should be no. So this was all about the solution of a decision tree. Hope you all understand. Okay, thank you.